जी Okay. Sorry for interruption. There was some issue that I was not able to control my slides. Anyway, now it has been sorted out. It seems to be. So now we'll talk about space planning. Am I audible now? yes sir, Vishnu yes ji? sir. Yes, जी yes, sir, sir. yes Okay, sir. fine. Yes, sir. Fine. Yes, sir. So when we talk about space planning, electrical fellow normally gets a banging, where gets a bad word from civil engineer and the architect that you have put things in a crude manner and you have spoiled the whole beauty of the building. Panel has been put at wrong place. Ducts are coming. Ducts and HVAC ducts and firefighting pipe is making his life miserable. The architect has to bring down the duct, bring down the false ceiling, and then and you are waking up now, and HU is not going in the H room. So lot of banging is there with the electrical engineer for all these accounts. And maybe the street light pole has been put at the wrong place. Maybe firefighting yard hydrant has been put at a wrong place, all looking ugly, something like that. So you might, all electrical engineers might have got such comments from their seniors or from the civil engineers or the architects. So basically, why it happens? It practically happens primarily for two reasons. First reason is that probably thought has not been given that where exactly it will fit properly. The fit properly mean we have probably not thought of what size we require. We have not consulted the manufacturer of the equipment, what exactly the size, so that results in the short. Then the short that results in that HU is not entering the HU room, something like that, or the AC plant has been provided and AC equipment is not fitting in. A lot of things have happened. So then you have to extend it, or you have to take another room. Or maybe we wake up at the last moment, then we ask the fellow that okay, now I want a CCTV control room also, or I want this room as well. This sort of things keep happening. So basically, one is planning part. Second aspect, which is more disturbing, is that is basically less of communication and not understanding the other's perspective, architect's perspective or civil engineer's perspective. That after all, it is very important that fire hydrant has to be put at the proper place, but it's also important that I am not making the building for that fire hydrant. I am not making the building for AC plant. Let us understand, I am not making the building for that substation. I am making the building for a user. So if it doesn't suit user, if it doesn't suit user the placements, then obviously unless I have very strong reason, I should not insist upon it is the right place. So we have to place the location. So only thing is that requires interaction between the electrical engineer and the architect. Yes, we are. So I personally feel specifically after leaving CPWD that these things are very important, and architect should be roped in that where exactly it should fit in, because he has got a different concept. Okay, this should look like that. And many times our street light poles become a eyesore. My building becomes 6 meter height and street light pole is 9 meter height. Sometimes we do that also. So there has to be everything has to go together. You can have a 9 meter pole for a very 9 meter pole is okay if you are putting on uh, a state highway or a street, but basically normally we deal in the campuses. Campuses don't require such big poles. This normally 6 meter poles should be good enough in a small campus, because campuses we are putting a lot of plants, etc. And then plants grow up and then finally we don't get any light on the street. So those are some of the comments. And so my concept of providing space is that we should not be seen. It should be experienced only. So you enter in a five-star hotel lobby, you find AC is working, switches are working, but you don't see switches. You don't see the grill is available. Grill is there, but you don't really see, because they have amalgamated grill in the interior. So something of that sort has to be thought of. So visible items should add elegance to the building design, internal or external, and it should not be eyesore. That is the first sentence before we start this talk. So aesthetic is very important in today's world. So we have to think of location of substation, location of electrical room, fire control room,
niches, shaft, doors, placement of panels and DBs, placement of luminaires, location and symmetry of switch boxes. This is also important point, look, symmetry of switch boxes. Then number of switches and size of switch boxes. This is all. Sometimes we put such a big switch box which has got 12 switches. This no one except today's aesthetic has become aesthetic has taken a precedence. So you have to design the switch. You can have more number of switch boxes, but sleek switch boxes. Number, height, and location of compound slide poles I just discussed, and placement of outdoor feeder pillars. Outdoor feeder pillars में एक सबसे बड़ा problem होता है कि I will discuss. Let me talk outdoor feeder pillar. See, feeder pillar, why do we want it on the feeder pillar? Can be very just outside the guard room. It can be outside such rooms which are available, not at anywhere you provide a feeder. Okay, we may save some cable, but we have to think of elegance also. Architect and civil engineer is spending crores of rupees only for decoration. Let us mind this point. Electrical engineers have to understand that architect and civil engineers are spending crores of rupees for elegance. Then why should I bother about lakhs, thousands of rupees only for saving and then spoil that elegance? Because sometimes we feel okay, this is the right place because but so let us have it's an optimum. You have to find an optimum balance where exactly it should fit in. Okay, sir. Then location of indoor and outdoor unit in case of split AC. Connecting pipe, location of plant room. I will discuss one by one. Location of HU rooms, location of cooling towers. We have less time, but at least 1 day is required complete for discussing space itself. Location of cooling tower. See, cooling tower is also becomes cooling tower में बहुत सारे points हैं sir. Civil engineers के लिए भी, electrical engineers के लिए भी. Because cooling tower has got a very heavy load. Cooling tower load may be, you know, what is the dynamic? Cooling tower is not only static load. It is a dynamic load which is important because it runs cooling tower में एक पंखा लगा है, पंखा बहुत तेज घूमता है, पानी ऊपर से गिरता है. So in that case, dynamic load becomes very important. Say if I talk you 500 ton is a suppose chiller is 500 ton, so I'll have a cooling tower for that chiller 500 ton chiller. Can anybody tell me what is the load of dynamic load of this cooling tower of 500 ton? Any electrical engineer? Dynamic load of cooling tower of 500 ton plant, 500 ton chiller. 500 ton chiller का what is the dynamic load of cooling tower? 5000 kg. कितना? Hello. 5000. 5000 kg. It is 15,000 sir nowadays. Nowadays अभी सर क्या हो गया? 15,000 I am saying. Nowadays sir क्या हो गया? Cooling tower as per our specs also we want cooling tower should be CTI certified, Cooling Tower Institute certified. So once we are taking CTI certified cooling tower, these cooling towers are much bigger than normal cooling towers. And because why these are much bigger? Because those are more effective. The efficiency of cooling tower is much better because ultimately all heat of the space has to be directed at the cooling tower only. Whatever cycles we have got, the condensed compressor is doing its work, but ultimately heat has to be rejected in the cooling tower, right, sir? So CTI certified cooling towers are quite bigger, maybe having 2 fans or 4 fans. And it not only so the 500 ton chiller cooling tower will be about 15,000 kg. So in case you are having a 4 number 500 ton plant, that means you are putting 4 number cooling tower each of 15 ton. So unless electrical engineer knows this aspect and he communicate this aspect to structural engineer and the architect, I am going load. So and then suppose you don't tell at the planning stage what is how many cooling towers, what is the load of cooling tower, then structural engineer or the civil engineer find it really embarrassing at the last moment. Now you want to put a cooling tower that much weight, and suppose you don't tell him and you have a feeling it's only 5 ton, then okay, you have put a cooling tower of 500 ton chilling plant, then your building, what is going to happen, the structure of the building, God only knows. Then condensation of chiller pipes above false ceiling, type of false ceiling, proper routes. These are some of the issues. I am only highlighting the issues. Then some of the issues I will take up. Then location of ceiling mounted AHU and its service windows. Sir, whenever we are mounting AHU, ceiling suspended AHU is ceiling suspended AHU is to be avoided. Specification says
ceiling suspended AHU should be avoided. Why it should be avoided? Because ceiling suspended AHU of a AC plant requires fresh air. So normally we don't find a route of fresh air, so fresh air is not given. And then this any AHU requires service, periodical service. So once in a, AHU is serviced once in a week. At least once in a week AHU is to be serviced. So even the ceiling suspended AHU is to be serviced once in a week. So that means so you require a window, you require a service window about 1.5 meter into 1.5 meter, maybe 2 meter by 2 meter for a bigger AHU. So that much window is required in the ceiling. So unless we have a interaction with architect and ourselves, what type of window it will be, how it will look, and all that, we'll find in a catch-22 situation. Type and sizing of duct use. Someone said that he wanted a formula for ducting. See, ducting, air conditioning ducting ka formula, sir, because you have AHU. From AHU, you have to travel to different air has to travel to different areas through the ducts. So nothing can be done. So now duct sizing will be designed by a consultant or an engineer who will use ductometer and some softwares to design the duct sizes. So, and the only thing is he has to, before using duct sizes, he should know what is the level of false ceiling. And in a normal building, it requires about a total clear cut. I am talking typical MS building, typical AHUs. You require a clear space between the false ceiling and the true ceiling of minimum 700 mm. If you have anything less than 700 mm clear space between the true ceiling and false ceiling, we do have the problems. But nothing less than 600. Then because now you have to adjust electrical lights. So what is required? A minimum 700 mm, 70 centimeter between the true ceiling and false ceiling. And this, when I am saying true ceiling and false ceiling, I am counting beam in the true ceiling. So between the bottom of beam and the false ceiling, we need about 700 mm, 70 centimeter. That only then the life becomes easier for the designer for routing the thing. Otherwise, what they do is, suppose architect says, okay, sir, I will give you only 400 or I will give you only 500. Then what is done is they will make so many bends in the pipe, so many bends in the ducts, and the whole thinking of energy conservation, this all go blah blah. All is only talk of town, and then you have the problems after 4 years, after 5 years, something will be leaking, something will not be working, hawa pahunchegi nahi, pani pahunchega nahi, etc. etc. So electrical engineer. So what is required is from electrical engineer should make a cross section, wherein he should show he needs this much area required for duct, and because normally typically duct typically the bottom is electrical fittings, above electrical fitting you have a duct, and above duct you have a firefighting pipe, and that is what is required. So electrical engineer has to make a section, and then that section should be discussed with the architect. And then whatever if he can sell you some other route, well and good. Excuse me, sir. Yeah, please. This 600 or 800 जो भी है, ये excluding the depth of beam के बाद clear इतना चाहिए. Beam के बाद सर 600 से कम में तो होता नहीं है. Beam के बाद 600. तो floor height is minimum 4 meter is required, sir, in that case. बिल्कुल सर. जहाँ पर आप सेंट्रल एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं, वहाँ फ्लोर टू फ्लोर हाइट. अक्सर प्रॉब्लम सर क्या होता है, यहाँ पर एक गैप भी है बिटवीन द आर्किटेक्ट एंड द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. आर्किटेक्ट क्या बोलेगा कि मेरे को वो फ्लोर टू फ्लोर हाइट की बात करता है, सेंटर ऑफ फ्लोर टू सेंटर ऑफ फ्लोर, राइट सर. वो बोलेगा मेरा फ्लोर टू फ्लोर हाइट इज से 4.5 मीटर. नाउ दिस फ्लोर टू फ्लोर हाइट हैज गॉट ए beam depth, beam depth including slab including beam depth say 700, yes. Right? Then there will be floor itself. Then floor mean which they put up they will, because उसने जो आपका आरसीसी था वो तो उसने ले लिया, अकाउंट कर लिया इसके अंदर 4. इसमें 700 के अंदर, ठीक है. लेकिन जो फ्लोर लगाया उसने वो नॉर्मली छूट जाता है. फ्लोर में दे विल पुट गिट्टी पुट करके फिर वो फ्लोरिंग करेंगे, तो वहां भी वो करीब कम से कम अराउंड 100 खर्च कर देते हैं.
right sir. 50 mm. Sir, if 50 normally sir, they have to give slope also, sir. They have to give slope also. And then when they take 700, suppose beam depth is 700 including the slab height, this 700 is no. तो उसके में कहीं bulge हो गया होगा, कहीं नीचे हो गया होगा. 700 at some places it can be 720, 730 also. And then this is basically 100 goes out of it. So 4.5 meter minus 800. How much is left out is 3.7 meter, right sir? Now out of 3.7 meter, I said I want 700. That means you are left with 3 meter. And that false ceiling itself requires 50 millimeters. सर बाद में आपने सभी देखा होगा कंस्ट्रक्शन जब फिनिशिंग स्टेज पर हम लोग 10-10 मिलीमीटर के लिए झगड़ा कर रहे होते हैं, क्योंकि फॉल्स सीलिंग जो लगाते हैं दैट इटसेल्फ इज 50 मिलीमीटर. फॉल्स सीलिंग वाला बोलेगा कि सर मेरे को फ्रेम लगाना है, ये करना, वो करना है. नहीं तो सर कितना क्लियर चाहिए बीम के बाद, कितना क्लियर चाहिए मिनिमम? सर मैंने बोला सर टिपिकल बिल्डिंग के अंदर बीम और ट्रू फॉल्स सीलिंग के बीच में 700 गैप से कम में डिफिकल्ट होता है. 600 से कम में तो काम होता नहीं है प्रैक्टिकल. सर बिल्डिंग की कॉस्ट भी तो बढ़ जाती है सर, लेकिन आपके सेंटर कंडीशन चाहिए तो इतना करना पड़ेगा ना सर. कॉस्ट बढ़ जाती है. सर if the building floor height is 3.5 meters, it is highly difficult to get that 700 below the beam. सर उसमें एक तरीके होते हैं सर. व्हाट सम आर्किटेक्ट डू, व्हाट दे डू इज कॉरिडोर के अंदर बीम डेप्थ कम कर लेते हैं, फिर हम मेन डक्ट कॉरिडोर में रन कर देते हैं. वो भी एक तरीका होता है. तो देन समवन हैज टू सिट एंड फाइंड आउट, बिकॉज़ व्हाट दे डू इज कि दे पुट द बीम हाइट इन द कॉरिडोर में बीम डेप्थ बहुत कम कर लेगा वो. तो ये बेसिकली ये कॉरिडोर में बीम डेप्थ करके मेन डक्ट कॉरिडोर में चली जाएगी और फिर वहां पर हमको अंदर 300 या 400 में काम चल जाएगा. नहीं, in that case sir HVAC duct size we can reduce, width we can increase, the depth we can reduce, like that we can arrange. क्या होता है कि when you there is this ratio, aspect ratio which you call, after all you cannot go beyond that. उसमें efficiency of system खराब हो जाती है. Okay, no doubt sir, but only for this ducts, if 700 is clear distance is required, then building cost will go high. Sir, what I'm saying is building cost, I agree with you. What I'm saying is कि यदि आर्किटेक्ट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बैठ जाए पहले ही, जिस समय डिजाइन हो रहा है, आर्किटेक्चर इंजीनियर बैठ जाए तो रास्ते निकल आते हैं. प्रॉब्लम ये होती है कि हम सभी लोग लास्ट में जाके जगते हैं, आर्किटेक्ट भी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी और एग्जॉस्ट स्ट्रक्चर भी. तो उसमें बात, क्योंकि दे डोंट टॉक ना सर, वो कहेगा 400 दे दिया मैंने. अब 400 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसने सब जगह सेम बीम डाल दिया. यदि उसको मान लीजिए, क्योंकि सर 700 मैं बोल रहा हूँ, मैं एक टिपिकल की बात कर रहा हूँ. मे बी दैट बिल्डिंग में रिक्वायर लेसर स्मॉलर डक्ट्स, बिकॉज बिल्डिंग हमने ऐसी बना के रखी हुई है, क्योंकि बहुत सारे एचयू रूम दे दिए हैं, तो डक्ट की साइज कम हो जाएगा मेरा, क्योंकि फायर फाइटिंग पाइप भी जा रहा होता है. तो उसमें एक तरीका ये होता है कि हम जो सेंट्रल कॉरिडोर है उस सेंट्रल कॉरिडोर में बीम डेप्थ कम कर दें, मेन डक्ट वहां से चली जाए तो अपना काम हो जाता है. क्योंकि कॉरिडोर में आप फॉल सीलिंग हाइट कम रख सकते, 2.4 मीटर भी रख सकते हैं कॉरिडोर के अंदर. फॉल सीलिंग हाइट अंदर आप फॉल सीलिंग हाइट 3 मीटर रख लीजिए. तो देयर आर मेनी वेज टू डू इट, लेकिन उसके लिए बैठना पड़ेगा सर, है ना. तो समवन हैज टू प्लान प्रॉपर्ली. तो उसको क्या होगा, कॉरिडोर के अंदर उसको 700 मिल जाएगा उसको, और बाकी एरिया में 300 से काम चल जाएगा उसका. Is there any minimum height from floor to ceiling sir? Is there any NBC norms or like that? सर देखिए, जो लिविंग एरिया है सर, एनबीसी का ऐसा कोई नॉर्म नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो लिविंग एरिया है जहाँ पर रूम वगैरह जो होंगे, नॉर्मल सर उसका एक 2.4 मीटर से कम सर एनबीसी का जो नॉर्म है. यू कैन नॉट हैव फॉल सीलिंग बिलो 2.4 मीटर. आज जहाँ भी लिवेबल एरिया है वहाँ 2.4 मीटर से कम कुछ नहीं होगा. तो 8 फीट से कम पर कुछ नहीं होगा. इट हैज टू बी मोर देन 8 फीट. Exactly, minimum 9 feet generally. 8 फीट से कम तो आप बना ही नहीं सकते ना फॉल सीलिंग. तो लेकिन आर्किटेक्ट क्या करेगा सर, आर्किटेक्ट कहीं भी 2.5 मीटर से कम नहीं रखता है, और रखना भी चाहिए, बिल्डिंग खराब हो जाती है. तो वो 3 मीटर रखेंगे तो बहुत अच्छा है. तो मतलब यू हैव टू फाइंड द वेज. व्हाट आई एम सेइंग इज कि मेन डक्ट जहाँ चल रही है, तो जहाँ मेन डक्ट चल रही है आपका 600 से कम तो काम होता ही नहीं है, बिकॉज जहाँ मेन डक्ट चल रही है उसका मेन पाइप भी चल रहा होगा उस एरिया में. 600 कम से कम चाहिए होता है. हाँ जी सर.
अच्छा, अब सर आते हैं हम ग्रिल्स डिफ्यूजर्स टाइप। इसमें सर एक और होता है कि ग्रिल्स एंड डिफ्यूजर्स हैव टू प्लेस प्रॉपर्ली सिमेट्रिकली सो दैट इट ब्लेंड्स विद द कलर स्कीम ऑफ द आर्किटेक्ट। क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं, ग्रिल्स वगैरह पहले ऑर्डर कर देते हैं, उस ग्रिल्स के कलर पे ध्यान नहीं रखते हैं। तो यू कैन ऑलवेज टॉक द आर्किटेक्ट कि सर आपका कलर क्या है, उस स्कीम उस पर्टिकुलर एरिया का जहाँ ग्रिल आ रही है, तो यू कैन डू द मैचिंग ग्रिल कलर। वो बैठ के है मेरा मेल आईडी खोल दो। नहीं वो ही है ना, वो ये है, ये भी प्रिंट निकालना, एक सॉफ्ट कॉपी, एक हार्ड कॉपी। हाँ, और उसमें वो दोनों एक ही है कि नहीं, कब से वो देखना है। सेम और वो देखा भी, वो भी भेज देता हूँ। हाँ, मैडम को Sir, I request once again to switch off your mics and then you can talk whatever you want to talk. Anybody is getting disturbed. Mr. साहब mic off कर दीजिए। मिश्रा साहब सभी का माइक ऑफ कर दीजिए। कल तक है सर। हाँ सर। Mr. साहब, I request to switch off the mics of every person. Sir, Tapan Kumar sir, please switch off your mic, sir. मेरा तो माइक ऑफ है। Okay. This is very important for civil engineers. The clearances from buildings of lines of voltage exceeding 650 volt. 650 वोल्ट लाइन नॉर्मली आप जब कभी कैंपस बनाते हैं CRP या BSF वगैरह के, तो we see the lot of lines are going in. So there is a regulation that overhead line shall not cross over an existing building. जब overhead और साथ में no building shall be constructed under an existing overhead line. So unless you have a plan to remove that line, building will not be constructed below a line. जब भी हम साथ में whenever we talk of clearances, sir, suppose कीजिए आपको एक लाइन दिख रही है and you have to take vertical clearances because you need vertical clearances and horizontal clearances from that line. So when we take these vertical and horizontal clearances, you have to consider sag because पूरा का पूरा जो वायर है वो दो तीन बड़े बड़े सिस्टम में है, that wire itself can बहुत बड़ी वायर है, तो and horizontally also it can swing 3 meter or so. So after swing only you have to consider distance, safe distance. Not that today you have gone to site, you see the vertical center and measure 3 meter and make the building. Not that way. You have to consider that this wire today it is, because when you see the high rise high tension lines, you see कि wire has got wire horizontally vertically 2-3 मीटर ड्रॉप हो रहा है सेंट्रल लाइन से। तो जब बहुत ज्यादा एयर आती है, आंधी आती है, तो वहां से वो हॉरिजॉन्टल स्विंग करेगा 3 मीटर। तो स्विंग को कंसिडर करते हुए ही हमको जो है डिस्टेंस काउंट करनी है। और डिस्टेंस क्या होंगी? ये वर्टिकल डिस्टेंस की बात हो रही है सर। फॉर लाइंस ऑफ वोल्टेज एक्सीडिंग 650 वोल्ट, दैट इज 650 वोल्ट के ऊपर हम किस वोल्ट में आ गए? मीडियम वोल्टेज में आ गए। एंड अप टू 33,000 वोल्ट minimum distance is 3.7 meter. For lines of voltage exceeding 33 kV, it is 3.7 meter plus 0.3 meter for every additional 33 kV. That was vertical clearance. This was vertical clearance. And horizontal clearance up to 11 kV line will be 1.2 meter. ये नॉर्मली स्ट्रीट्स वगैरह में काफी लागू होता है कि पतली स्ट्रीट्स में लो वोल्टेज वो लाइन स्ट्रीट लाइट भी ओवरहेड लाइन से चल रही है वगैरह, वहां ज्यादा इशू आता है। सो मिनिमम रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 1.2 मीटर इन जनरल। इफ इट इज 11 kV to 33 kV लाइन, इट इज 2 मीटर। बट यू हैव टू ऑलवेज काउंट द सैग। डिस्टेंसेज हमेशा सैग के बाद ही मेजर होंगी, क्योंकि उसके पर मैंने बोला सैग इतना 2 मीटर हो सकता है, तो उसके बाद ही डिस्टेंसेज काउंट होंगी। Extra high voltage lines, sir, you might have seen when you are designing a campus of CRP, BSF, etc., or maybe in IIT and IIT,
then you might have seen some extra high voltage line. Extra high voltage line means lines more than 33 kV. इन lines के अंदर क्या होता है सर, more than 33 kV lines में you might be seeing the line, and now just now we have understood कि हमको कितना gap चाहिए. Vertical horizontal gap for lines more than 33 kV it says 2 meter, right sir? It does not mean if from that extra high voltage line which is passing through a campus which is say 66 kV line, as per this formula what you require is only 2.3 meter clear distance, right sir? That does not mean you can make a building after 2.3 meter from that line, because there is something called right of way. What is right of way? Sir, जो overhead line, extra high voltage line होती हैं, उसके center point से both sides, maybe 20 meter each side, so total 40 meter is the right of way. This right of way, which is 40 meter, seems to be pretty high, but that is the fact. So from the center point of that line, both sides, say 20 meter each, both sides, 20 meter not a small thing, 40 meter का right of way हो गया, is called right of way. So when you are designing such campuses, please find out what is the right of way, because this right of way is the way where no construction is permitted, and this space will be used by the grid company, because this line is belonging to distribution grid company or distribution company. So they will maintain the line by driving their machinery or whatever it is in this driveway. They have a right of way, and so nothing is allowed to be constructed. And please mind it may be from 25 meter to 60 meter for very high DC high voltage line. So it is a very long, it is very quiet. So please make sure what is the right of way, find out, and then only plan the buildings. Otherwise, it will be in problem. Any questions by civil engineers? I can discuss regarding right of way. Now we come to meter room residential building. Sir, many times residential building में हमारे architect क्या बोलेंगे? They will say कि okay, let us have a meter room below the staircase, because they want to save a room, because space is at premium. Every square meter is 1 lakh rupees nowadays. Constructed space may be including the cost of land and cost of building. It may be costing about say 1 lakh rupees per square meter. So the architect and civil engineer would always like to give more and more space to usable area rather than service people. It's understandable. So they will say, okay, meter room should be below the staircase. Suppose it's a ground plus access, whatever the structure is there. But as per Act, now meter room is not permitted in below the staircase. It has been done because suppose there is a fire in the meter room, then means because meter room में क्या होता है कि हम meter room उसके नीचे लगा देते हैं, तो वो रास्ता यदि आग है तो वो स्टेयरकेस का रास्ता ही ब्लॉक करेगा. ये मीटर रूम nowadays as per act, meter room is not allowed to be put up below the staircase in the residential buildings. ये residential building में प्रॉब्लम आता है ज्यादा स्टेयरकेस नीचे लगाना. अभी हम आते हैं shaft cutout पर. Someone was asking the shaft. See, the shaft cutout drawings are available in central CPOD internal EI specifications. I have simply copied it and I am showing it to you. It is not my contribution. See, electrical shaft will be normally, it is showing 2.5 meter by 2.5 meter by 80.8 meter. It is showing like that. 0.5 meter by 0.8 meter electrical shaft. If you give me this much shaft, at least at the floors, you don't have to give me electrical room, because I can adjust everything here. Electrical panel, I can adjust a small electrical panel, which he is showing. Electrical panel is also adjusted here. So this becomes an electrical shaft come electrical room at every floor. So you give me that. This is not a small thing, not a very big thing, and that serves the purpose. Now coming to cutout in this shaft. If you see this shaft, the whole shaft has not cut out. This is a drawing, standard drawing, which is available in CPOD internal EI specifications. But what is normally done by civil engineer and architect, that they make a opening of the whole shaft. We don't really require to have an opening for the whole area of such 2.5 meter into 0.8 meter or in any other shaft. If you give such a big opening, then these are the problems for the structural engineer by designing.
and problems for the engineers of executing engineer because of safety consideration. Then civil engineer बेचारा उसको they keep on putting barricading, make sure that no one falls in these shafts. So why don't we have a small, as per this drawing, you need to only give small 2 openings at the ends where we can bring either the cable or the rising main. And you don't need a big opening. Similar is the case for firefighting shaft. Down below, second drawing is in the same this thing. See, shaft is 1200 into 800 mm, but the opening required is only 200 by 200 mm at one corner. If it is this is required number of pipes. If only one pipe has to come, one opening of 200 by 200. If 2 pipes are coming, suppose this building is having a sprinkler system as well as wet riser system, then you will have 2 such openings. 200 by 200 के 2 लगेंगे फिर वहां पर. Or it can be 400 by 200 opening can be is good enough. For wet riser cum sprinkler shaft, you need a is opening in the shaft should be done only the bare minimum. Please, shaft does not mean electrical engineer want a complete opening. That is to be understood clearly. Any question? I expect some question here from civil engineers. Please. सर एक्सक्यूज मी Yeah, please. सर शाफ्ट का डोर किस चीज का होगा सर? सर शाफ्ट का डोर आज की डेट में नेशनल बिल्डिंग आई एम कमिंग शाफ्ट का डोर आज की नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार फायर 2 आवर फायर रेटेड होगा. तो 2 आवर फायर रेटेड में या तो आप उसको स्टैंडर्ड 2 आवर फायर रेटेड डोर ऑर्डर कीजिए या एमएस के डोर लगाइए. एमएस का डोर लगा दिया 1.6 mm सीट का तो 2 आवर फायर रेटेड हो जाता है बेसिकली वो. तो इट इज आइदर एमएस डोर और इट इज ए स्टैंडर्ड 2 आवर. इट इज लेट मी से इट इज 2 आवर फायर रेटेड डोर. लकड़ी का डोर नहीं होगा, फायर रेटेड डोर होगा. लकड़ी का ऑर्डिनरी डोर नहीं होगा, फायर रेटेड डोर होगा वो. And this is true or not only, see, this will be true for electrical shaft and low voltage shaft also, because nowadays in building we are asking for a electrical shaft, we are asking for a firefighting shaft, we are asking for a low voltage shaft. But low voltage shaft means we take CCTV wire, fire alarm wire, telephone wire, data wire, etc. So in that shaft also you require a fire door rated to 2 hours. सर एक चीज और सर, हाँ प्लीज. बिल्डिंग में ये शाफ्ट की लोकेशन कहाँ पे बीच में रहती है? सेंटर में रहेगी? जितना सेंट्रल होगा उतना अच्छा है ना, जितना सेंट्रल होगा उतना अच्छा है. सेंट्रल में नॉर्मली शाफ्ट है तो पास, नॉर्मली शाफ्ट में सेंट्रल का दूसरा भी इशू होता है कि नॉर्मली शाफ्ट है टू पास थ्रू द रूम. सपोज इलेक्ट्रिकल शाफ्ट है तो इलेक्ट्रिकल शाफ्ट शुड नॉर्मली पास थ्रू द इलेक्ट्रिकल रूम एट द ग्राउंड फ्लोर. जी, वहीं से स्ट्रेट ऊपर उठना चाहिए. Similarly, fire alarm shaft should normally pass through the fire control room at the ground floor. Telephone shaft should pass through the telephone room at the ground floor or whatever floor you are providing. So इस तरह से रूम प्रोवाइड ये शाफ्ट उठाएंगे. Now see the telephone shaft here. Telephone shaft is 600 by 300. Similar dimension has been gained for fire alarm shaft 600 by 300. Here, what is required is only a slit at the back end. 50 mm slit is good enough. We don't require more than that. Otherwise, normally क्या हुआ साइड पर पूरा काट देगा उस shaft को. Once you have complete cutout in the holes, that means your cutout and shaft become one thing in general. So that is really not economical for civil engineer, not good for architect, not good for electrical engineer, because बाद में सारे shaft बंद करने हैं. आज की रिक्वायरमेंट ये है कि जब काम खत्म हो जाएगा, इवन दी स्मॉल ओपनिंग जो मेरे को 50 mm की मैंने स्लिट काट दी या मैंने जो भी, ये सभी जो है मेरे बाद में काम करने में बिल्कुल फायर सील करने पड़ेंगे, बिकॉज स्मोक कैन ट्रेवल फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर. सो ऑल दीज हैव टू बी क्लोज. वी कॉल इट फायर सील, स्मोक सील और फायर सील करना पड़ेगा इसको, विच इज अ कॉस्टली अफेयर. सो स्मॉलर यू कट इट, बेटर इट इज. ओके सर, सर आप प्लीज बोलिए. नहीं हो गया सर, ये कुछ ओके, वेरी गुड. ये एक इलेक्ट्रिकल इंटरनल आई के ड्राइंग में ये शाफ्ट ड्राइंग का डोर का ड्राइंग दिया हुआ है, लेकिन ये आउटडेटेड हो गया क्योंकि नेशनल बिल्डिंग कोड ये 2013 का ड्राइंग है. इसको मैं क्रॉस लगा लीजिए क्योंकि ड्राइंग में वेंटिलेशन दिया हुआ है और फायर डोर के अंदर वेंटिलेशन होगा ही नहीं. राइट सर?
Coming to substation. एनबीसी की बात करते हैं सर. एनबीसी से कि सबस्टेशन शुड बी लोकेटेड इन ए सेपरेट यूटिलिटी बिल्डिंग. मतलब वो कहता है सबस्टेशन एक अलग बिल्डिंग में बना दो. सबस्टेशन शुड प्रेफरेबली बी लोकेटेड. वो अच्छा रहेगा कि सबस्टेशन शुड बी इन ए सेपरेट बिल्डिंग एंड मे बी एडजेसेंट टू द जनरेटर रूम इफ एनी. Location of substation in the basement should be avoided as far as possible. This is National Building Code, not CPWD. But so National Building Code is above CPWD specification. Location of substation in the basement should be avoided as far as possible. In case there is only one basement in this, ये सब ध्यान से देख लीजिएगा civil engineers. In case there is only one basement in a building, substation and oblique switch room shall not be provided in the basement. Why? कहता है सिंगल बेसमेंट है. बहुत सारी हमारी सिक्योरिटी की बिल्डिंग में मिस्टेक हुआ है. एटलीस्ट सम ऑफ द बिल्डिंग व्हिच आई एम डीलिंग विद कि सबस्टेशन वाज प्रोवाइडेड इन द सिंगल बेसमेंट. सर व्हाई इट हैज बीन डन कि सपोज देयर ओनली वन बेसमेंट, यू कैन नॉट हैव ए सबस्टेशन और द मेन स्विच रूम इन द दैट बेसमेंट, बिकॉज जब कोई फ्लडिंग होगी तो सारा का पानी लोएस्ट पोर्शन में आएगा जो कि फर्स्ट बल्कि सिंगल बेसमेंट है, सिंगल बेसमेंट में आ जाएगा और मेरा सबस्टेशन में पानी भर जाएगा. इसलिए सबस्टेशन इज नॉट परमिटेड इन द basement if it is only single basement. However, if there are two basements, then substation you can have in the top basement. Agreed, sir? If there are two basements, you can have substation in the top basement. So there is lower basement and upper basement. You can have substation in the upper basement if there are two basements. सर फायर के केस में भी ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि दोनों चीज अगर साथ साथ है, डीजी सेट, सब स्टेशन या स्विच रूम, तो कंट्रोलिंग में भी दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी फायर के. देखिए डीजी सेट है, स्विच रूम है, तीसरा क्या बताया आपने? सब स्टेशन. सर देखिए स्विच रूम की तो हमने बात कर ली अभी और डीजी सेट के साथ में सेम है जो कि डीजी सेट के लिए सेम रूल है जो कि सबस्टेशन का रूल है. ठीक है ना? क्योंकि उपहार कांड इसीलिए हुआ था वो. नहीं, उपहार कांड की सर वजह दूसरी थी सर. उपहार कांड बेसमेंट में तो थे वो सर, बेसमेंट में थे, लेकिन सर वहां पर क्या हुआ था उपहार कांड में, जो सबस्टेशन था वो ऑयल ट्रांसफार्मर था. आज की डेट में ऑयल सब यदि बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग के अंदर आई एम सेइंग वेदर बिल्डिंग के अंदर सबस्टेशन में लगाओ या ग्राउंड फ्लोर पे लगाओ, विद इन द बिल्डिंग इफ यू आर पुटिंग ए ट्रांसफार्मर, ऑयल ट्रांसफार्मर नहीं लगाना है. क्योंकि जब कभी सबस्टेशन में आग लगे ऑयल बहुत बॉयल हो जाता है, वो थोड़ा स्प्रेड भी हो जाता है, इसलिए बॉयल ट्रांसफार्मर नहीं लगाना है. यू हैव टू हैव ए ड्राई ट्रांसफार्मर इफ यू आर पुटिंग इन ए बिल्डिंग विद इन द बिल्डिंग, विद इन द हैबिटेबल बिल्डिंग. लेट मी पुट एक्सक्यूज मी सर, बिल्डिंग या प्लीज. सर फायर पंप रूम क्या हो सकता है बेसमेंट में? मैं सर फायर पंप रूम पे आऊंगा, आपको क्लियर कर दूंगा. ठीक है, अभी दो स्लाइड और वेट कर लीजिए. ठीक है सर, ठीक. सब स्टेशन में ये हुआ सर सभी के लिए कि यदि सिंगल बेसमेंट है सब स्टेशन बेसमेंट में नहीं लगेगा. यदि दो बेसमेंट हैं तो अपर बेसमेंट में सब स्टेशन लग सकता है. ठीक है. Second point is substation ideally should be at the central location, right? So we'll just leave it. Why we want substation load center, because जितना load center रहेंगे उतना ही मेरा केबलिंग का कॉस्ट कम हो जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा. क्योंकि मैं एक वहाँ पर हाई सब वो बेसिकली क्या होता है, हम पहले हम उसको सबस्टेशन में हाई वोल्टेज को मीडियम वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं. तो हाई वोल्टेज में क्या होता है कि वंस इट इज हाई वोल्टेज करंट इज लेस बिकॉज करंट इक्वल टू पावर अपॉन वोल्ट. सो पावर तो हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट है हमारी बिल्डिंग की. वोल्टेज हाई वोल्ट है तो करंट मेरा बहुत कम हो जाता है. जब मेरा करंट कम हो जाता है तो मेरी बिल्डिंग केबल की कॉस्ट कम हो जाती है. इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना हाई उतना मैं 11 kV या 33 kV पे ले आऊँ अप टू द सबस्टेशन, इट इज बेटर. सो सबस्टेशन शुड बी लोड सेंटर, बिकॉज लोड सेंटर से सबस्टेशन से मेरी लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, लो वोल्टेज केबल चलेंगी जिनमें करंट काफ़ी होगा और इसलिए इनकी कॉस्ट बहुत आएगी और वोल्टेज ड्रॉप भी आएगा. एंड सेकंड पॉइंट इज कि सबस्टेशन में जहां भी सबस्टेशन बना रहे हैं सर बिल्डिंग में वो मिनिमम 4.5 मीटर क्लियर हाइट चाहिए बिलो सॉफिट ऑफ बीम. व्हाई डू यू वांट वी से दैट वी डोंट 4.5 मीटर बिलो सॉफिट ऑफ बीम? बिकॉज ट्रांसफार्मर इटसेल्फ 3 मीटर का होता है करीब. सपोज आप 500 kV या 1000 kV ट्रांसफार्मर लगाएंगे, that itself is about 3 meter height. After that transformer you need to put bus trunking etc. उसके लिए मेरे को जगह चाहिए होती है टर्निंग बेंडिंग के लिए.
तो 4.5 मीटर इसलिए दैट्स व्हाई वी आस्क कि 4.5 मीटर क्लियर चाहिए बिलो द सॉफिट ऑफ बीम इन ए सबस्टेशन. स्टेशन में सपोज मेनी टाइम्स आर्किटेक्ट दे ट्राई टू कंप्रोमाइज की सबस्टेशन बिकॉज आई साइड उनकी प्रॉब्लम है because money cost side is space is the premium of say 1 lakh rupees square meter including the cost of land, so they would like to give you as small substation as possible, but in case substation space is not sufficient तो उस केस में क्या होगा सर, नेसेसरी क्लियरेंसेस नहीं मिलेंगे, सेफ क्लियरेंसेस नहीं मिलेंगे, अप्रूवल्स में दिक्कत आएगी और जो बंदा काम कर रहा होगा उसको बेचारे को परेशानी होगी, जिंदगी भर वो गाली देगा. ये भी सर एनबीसी से उठाया हुआ है. वी कांट डिफाई इट, वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंसेस. ये दिखाता है कि सपोज लेट अस टेक द दिस केस लेफ्ट हैंड साइड बॉटम ड्राइंग, लेफ्ट हैंड साइड बॉटम ड्राइंग. नॉर्मली हमारा केस ऐसे ही होता है. तो दैट मीन इट सेज कि ट्रांसफार्मर के सभी साइड में 1.25 मीटर डिस्टेंस होनी चाहिए कम से कम. एंड बिटवीन टू ट्रांसफार्मर्स स्विच बोर्ड जब लगा रहे हैं किसी बिल्डिंग में, स्विच बोर्ड के अराउंड डिस्टेंस मिनिमम x चाहिए हमको. x इज लेस, आइदर x शुड बी लेस देन 200 mm, दैट मींस आदमी घुस नहीं पाएगा उसके अंदर. अदरवाइज इट शुड बी मोर देन 750 mm, क्योंकि नॉर्मली हमारे स्विच बोर्ड जो पहनते हैं वो बैक साइड से ओपन होते हैं, इसलिए बैक साइड में किसी व्यक्ति को जाना है तो इट इज बैक में एक्सेसिबिलिटी चाहिए. तो x इज मिनिमम 750 mm, 2.5 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए हमको, जिससे कि मैं पैनल में काम कर सकूँ. इन्होंने पैनल के फ्रंट में 1 मीटर दिखाया हुआ है. इन्होंने इस नेशनल बिल्डिंग कोड की ड्राइंग पैनल के फ्रंट में 1 मीटर दिखाया हुआ है, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है. मिनिमम 2 मीटर चाहिए होता है. क्यों चाहिए होता है? क्योंकि स्विच बोर्ड के अंदर एयर सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं. यदि ब्रेकर नहीं लगे हैं तो ठीक है, यदि ब्रेकर लगे हैं तो ब्रेकर की रैक निकालनी है मेरे को, दैट इटसेल्फ विल रिक्वायर 1 मीटर एंड 1 मीटर रिक्वायर फॉर स्टैंडिंग माई सेल्फ. सो फ्रंट स्विच बोर्ड के फ्रंट में 2 मीटर से कम में काम नहीं होता है. फ्रंट साइड में सर मैं बता, क्योंकि ब्रेकर लगे होंगे, ब्रेकर निकालोगे, ब्रेकर 1 मीटर का ब्रेकर हो जाएगा और 1 मीटर आपको चाहिए ब्रेकर को खड़े शाम को सामने देख. तो 2 मीटर से फ्रंट में नॉर्मली 2 मीटर से कम में काम नहीं होता. दो सेकंड ड्राइंग में 2 स्विच बोर्ड लगे हैं फ्रंट टू फ्रंट. यहाँ ठीक है, यहाँ काम हो सकता है क्योंकि मैं एक समय एक ही ब्रेकर निकालने वाला हूँ, तो यहाँ कुछ हद तक ठीक हो सकता है. लेकिन सिंगल लगाया तो भी मेरे को 2 मीटर चाहिए होगा, क्योंकि ब्रेकर निकालना पड़ेगा सर्विसिंग के लिए मेरे. See, after all, सर नेशनल बिल्डिंग कोड होता है, सीपीयूडी स्पेसिफिकेशन हो, इन एडिशन सब जगह लिखा होता है कि ये केवल गाइडलाइन है. गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस विल गवर्न, ये मिनिमम हो गया सर. इसके बाद में गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस विल टेक ओवर. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के हिसाब से मेरे को स्विच बोर्ड के सामने 2 मीटर क्लियर चाहिए, अदरवाइज मेरा ब्रेकर सर्विस नहीं हो कर पाएंगे. ये भी नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार एक ड्राइंग दी हुई है कि पैनल के ऊपर सबसे ऊपर ड्राइंग देखें, सबसे टॉप वाली ड्राइंग में टॉप लेफ्ट हैंड में पैनल के ऊपर इट्स आस्किंग फॉर 1.2 मीटर क्लियर. व्हाई इट इज आस्किंग? बिकॉज पैनल के ऊपर से आप केबल ले जाओगे केबल ट्रे पर, या आप बस टंकिंग या बस जो ले जाओगे वहाँ पर मिनिमम रिक्वायर 1.2 मीटर हाइट, जिसमें कि आप बैंड्स वगैरह कर पाओ. तो सॉफिट ऑफ बीम से मिनिमम 1.2 मीटर आपको चाहिए. और पैनल की हाइट कम से कम, नॉर्मली बड़े पैनल्स की हाइट इटसेल्फ कितनी हो जाती है? 2.7 2.8 मीटर हार्ड डिस्टेंस हाइट हो जाती है बड़े पैनल्स की. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बस को सबसे टॉप पे ले लेते हैं. डीडी सेट रूम देखिए सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलस्ट्रेटिव है सिविल इंजीनियर्स के लिए भी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए भी. डीडी सेट रूम में देखिए, डीडी सेट को मेरे रूम के अंदर रखना है तो क्या हुआ, नीचे आरसीसी फाउंडेशन बनी, कम से कम नॉर्मली 150-200 क्या बनाओगे, प्लिंथ उसका बनाओगे किसी भी फ्लोर के ऊपर जिसके ऊपर आप डीडी सेट को रखोगे. तो वो कहता है सर आरसीसी फाउंडेशन बनाया पहले आपने छोटा सा, फिर आपने 150-200 का एमएस चैनल लगा दिया उसके ऊपर, फिर आप डीडी सेट की हाइट के बाद आपको 3 मीटर क्लियर चाहिए. सर ये एनबीसी बोल रहा है, नेशनल बिल्डिंग कोड की ड्राइंग है कि डीडी सेट की हाइट टॉप के ऊपर 3 मीटर क्लियर चाहिए. इस ड्राइंग के अनुसार क्या होता है कि सपोज आप 500 केवी का डीडी सेट लगा रहे हो, 500 केवी डीडी सेट की हाइट कितनी है सर? 500 केवी डीडी सेट विद अकॉस्टिक एनक्लोजर, या विद अकॉस्टिक एनक्लोजर की बात हो रही है, विद अकॉस्टिक एनक्लोजर उसकी हाइट होती है करीब कैनोपी की 2.7 मीटर और 500 केवी डीडी सेट. तो दिस बिकम्स 2.7 मीटर प्लस 150 मिलीमीटर प्लस 3000,
So that becomes 2.7 plus 3 is 5.7 plus, so 5.85 हो गया. तो 5.85 मीटर हो गई बिलो 100 फीट ऑफ बीम. यदि आप 500 के भी डी सेट लगा रहे हो, 1000 के भी डी सेट लगाओगे तो डी सेट की हाइट 3 मीटर, कैनोपी की हाइट 3 मीटर है. 1000 के भी डी सेट में कैनोपी हाइट इज 3 मीटर, तो दैट मींस 3 plus 3 6, तो 6.15 मीटर का आपको 6.15 मीटर का आपको चाहिए बिलो 100 फीट ऑफ बीम. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है सर वहां पर, क्योंकि ऐसी बिल्डिंग्स में बीम इटसेल्फ 800 का होगा. Okay. So this is the another drawing which is of substation where we have ST panels, die-type transformers, etc. as illustration only. Entering of transformer or entering of DG set is also an issue. Pardon sir, entry of transformer, entry of DG set. Sir, इसमें DG ROM में सर एंट्री वगैरह तो बनेगी ना सर, डीजी सेट तो एंट्री करेगा, ट्रांसफॉर्मर एंट्री करेगा उसका. सेकेंडली नॉट ओनली एंट्री, बाद में जब आप डीजी सेट का प्लेसमेंट लगते हैं किसी भी सब स्टेशन में या डीजी सेट रूम में, you have to assume that any transformer will be required to be taken out for servicing. So पूरा रूट ऐसे डिसाइड कर लीजिए प्लेसमेंट के बाद में कि क्या मैं ट्रांसफॉर्मर को बाहर निकाल पा रहा हूँ, क्या मैं डीजी सेट को बाहर निकाल पा रहा हूँ. वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है देखने के लिए. We should always be able to take out transformer, any DG set or any transformer from that space. Excuse me, sir. सर सपोज ये सबस्टेशन आपका आउटडोर सबस्टेशन है, सपोज ये आउटडोर सबस्टेशन, उस केस में आई एम टॉकिंग आउटडोर, दिस इज आउटडोर सबस्टेशन आई एम टॉकिंग. उस केस में यू कैन हैव ए रोलिंग शटर जो वेंटिलेटर हो, आउटडोर सबस्टेशन. बट इंडोर सबस्टेशन है सर, यदि आपका बेसमेंट में सबस्टेशन है, इट विल नॉट हैव वेंटिलेशन, बिकॉज इंडोर सबस्टेशन में यू नीड टू हैव ए शटर व्हिच इज 2 hour rated. Indoor substation you need to have a shutter which is 2 hour rated. That means will not have ventilators. Indoor substation. Read it, sir. DG set shall not be installed at any floor other than ground/first basement. Fire resistance rated wall. Sir, एक क्वेश्चन. इसलिए डीजी सेट का बेस्ट है उसको ओपन में रख दीजिए, क्योंकि 6 मीटर का कमरा मिलेगा नहीं, ना मिलना, स्पेस वेस्टेज है, पैसा वेस्टेज है. डीजी सेट ग्रीन कलर का आता है, बाहर किसी जगह सेटबैक में रख दीजिए. हाँ प्लीज सर, क्वेश्चन. सर डीजी सेट का एग्जॉस्ट पाइप कितना टॉप तक उसको ले जाना है सर, ग्राउंड से एग्जॉस्ट पाइप जो आती है? सर देखिए डीजी, सर देखिए सिंपल है. डीजी सेट जो नॉर्म है सीपीसीबी का, DG set of 1000 kV and above will have the stack height, the chimney height will be high nearest building plus 0.2 under root kVA. 0 will have, इसमें सर ने अभी अगली स्लाइड में मिल भी जाएगा आपको डायरेक्ट फॉर्मूला. बट फॉर 1000 kV DG set of any height of sorry, any DG set will require a stack height of equal to nearest highest building plus 0.2 under root kVA. And any DG set which is 1000 kV and above will have minimum 30 meter stack height. दोनों एंगल्स को देख के स्टैक हाइट डिसाइड हो जाएगी. मैं रिपीट करूं सर, DG set of 1000 kVA will have minimum stack height of 30 meter, number 1. Number 2, stack height of DG set will be equal to height of nearest building plus 0.2 under root kVA. मैं इसमें सर एग्जांपल कहीं होगा, मैं भी ये आपको मिल जाएगा. 2 मिनट 5 मिनट वेट करें, आपको स्लाइड भी आ जाएगी. सर हाँ जी प्लीज. ओके. फायर फाइटिंग वाटर रिक्वायरमेंट. नेशनल बिल्डिंग कोड कहता है कि जो फायर फाइटिंग की टेबल सपोज 2 टैंक्स, 2 टैंक आएगा, टोटल 2 टैंक होंगे फायर फाइटिंग के. एक टैंक कभी नहीं होगा. वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक टैंक को आपको मेंटेनेंस में ले लिया सिविल इंजीनियर ने, तो फायर फाइटिंग का पानी खत्म हो जाएगा, उस दिन आग लगी तो क्या होगा. इसलिए मिनिमम 2 अंडरग्राउंड फायर फाइटिंग टैंक बनेंगे.
Now, water requirement of firefighting depends upon the building height, use of building, basements, compartmentation, sprinkler system, and terrace tank as required. इसमें सर एक बड़ा छोटा सा एक मैं आपको क्वेश्चन कर दूं, सभी लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं बट स्पेस रिक्वायरमेंट की डिजाइन बात कर रहे थे। नेशनल बिल्डिंग कोड में एक टेबल दी हुई है वाटर रिक्वायरमेंट की, टेबल 7 में अंडरग्राउंड फायर अंडरग्राउंड वाटर रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, लेकिन उस अंडरग्राउंड वाटर टैंक की जो कैपेसिटी है उसके अंदर उन्होंने वाटर कर्टेन की रिक्वायरमेंट ऐड नहीं की हुई है। तो वाटर कर्टेन के लिए जो पानी लगेगा बेसमेंट के में वो उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बेसमेंट के अंदर वाटर कर्टेन नॉर्मली लगेगा। उस वाटर कर्टेन की रिक्वायरमेंट 2 लाख लीटर के आसपास आती है बड़े बेसमेंट्स में, तो वो उतना पानी और ऐड करना पड़ेगा। वो आपका इंजीनियर ऐड करेगा। 2 घंटे नॉर्मली होती है, 2 घंटे सर, 2 घंटे। हाँ सर, ये वाटर कर्टन क्या होता है सर? दैट इज दैट मींस वाटर पार्डन वाटर कर्टेन कर्टन क्या होता है ना? हाँ सर। सर देखिए क्या होता है कि एक नेशनल बिल्डिंग कोड ने बोला है, नेशनल बिल्डिंग कोड के गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर फ्लोर को कंपार्टमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि एक कंपार्टमेंट के आगे एक कंपार्टमेंट रहे, दूसरे कंपार्टमेंट का स्मोक उसी में रहे, दूसरे कमर ना जाए। ये कितना कंपार्टमेंटेशन का एक स्लाइड है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो आइडिया ये है कि किसी भी फ्लोर का एरिया 750 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, किसी भी फ्लोर का एरिया 750 स्क्वायर मीटर ज्यादा है, तो आपको मिनिमम 2 कंपार्टमेंट चाहिए, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे वो बेसमेंट हो, चाहे वो फ्लोर हो। दैट मीन्स द आइडिया इज कि हमारा हमारा जो है एक लोग एक साइड के लोग एक साइड से भाग सकें और दूसरी साइड में कन्फाइन हो सके। इसलिए अब क्या होता है सर, अपर फ्लोर्स पे तो क्या होगा, आप कंपार्टमेंट को वॉल से बना दोगे, कोई वॉल बना दोगे, गेट बना दोगे, कंपार्टमेंट क्रिएट हो जाएगा, राइट सर? अपर फ्लोर्स पे तो कोई बड़ा इशू नहीं है, आप वॉल बना दोगे या कोई गेट लगा दोगे, कंपार्टमेंट हो गया। लेकिन बेसमेंट में क्या करोगे? बेसमेंट में आप वॉल बना, क्योंकि बेसमेंट तो कार का मूवमेंट है, बेसमेंट में कार का मूवमेंट है, इसलिए आप दरवाजा लगा नहीं सकते हो। जब आप दरवाजा लगा तो इसलिए वाटर कर्टेन लगाना पड़ेगा। वाटर कर्टेन कुछ नहीं है, बहुत ही क्लोजली स्पेस स्प्रिंकलर्स हैं जो कि बहुत पास लगे हुए हैं, जिससे कि जब वो स्प्रिंकलर पानी चालू हो जाएगा, पूरा वो वाटर का एक वाटरफॉल टाइप बन जाएगा। तो इसलिए आपका स्मोक दूसरे ट्रैवल नहीं करेगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट बहुत होती है, और 60 मिनट की जितना वाटर रिक्वायरमेंट आएगा, 60 मिनट का रिक्वायरमेंट जो है पानी पीछे एक्स्ट्रा होने चाहिए। ओके सर, ठीक है सर। तो ये 2-2 लाख लीटर के आसपास आ जाता है सर ये। तो केवल ये बेसमेंट में ही बनता होगा सर? फायर का जो वाटर कर्टेन बेसमेंट में ही बनेगा सर। नहीं, केवल बेसमेंट में ही बनेगा ना सर? हाँ सर बिल्कुल, वाटर कर्टेन नॉर्मली बेसमेंट में बनेगा। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर में नीड नहीं है सर? ग्राउंड फ्लोर वगैरह में तो आर्किटेक्ट वॉल बना देगा ना सर, वॉल बना देगा। वाटर इतना पानी कहाँ से जबरदस्ती लाएंगे? पानी ले भी आए, पानी गिर गया, सारा बिल्डिंग खराब हो जाएगी। उसने इतना महंगा कारपेट लगा के रखा है, निकालना मुश्किल हो जाएगा। का मिनिमम एरिया मैक्सिमम एरिया के कुछ लिमिट्स हैं क्या सर कंपार्टमेंटेशन का? नहीं, मिनिमम एरिया वो 750 बताया ना अभी, और मैक्सिमम एरिया कुछ है क्या सर? मैं कंपार्टमेंट स्लाइड पे आता हूँ, बाकी चीज बाद में कर लेंगे, राइट? ठीक है सर। ये सर, तो कंपार्टमेंटेशन का रूल ये है कि एनी फ्लोर पर एरिया 750 स्क्वायर मीटर से ज्यादा हो गया, 750 स्क्वायर मीटर कोई बड़ा आइटम नहीं है, फ्लोर एरिया 750 स्क्वायर मीटर ज्यादा हो गया, यूनिट कंपार्टमेंटेशन। अब कंपार्टमेंट लेकिन कंपार्टमेंट का एरिया कैन बी 3000 स्क्वायर मीटर। बेसमेंट में 3000 स्क्वायर मीटर ईच कंपार्टमेंट हो सकता है। ऑफिस बिल्डिंग जो हम डील करते हैं वो भी 3000, बिजनेस बिल्डिंग 3000 स्क्वायर मीटर का एक कंपार्टमेंट हो सकता है। मतलब ये हो गया सर, यदि मेरा फ्लोर एरिया 750 स्क्वायर 800 स्क्वायर मीटर ले लेते हैं, सपोज मेरा एरिया 800 स्क्वायर मीटर है, मेरे 2 कंपार्टमेंट चाहिए, ठीक है? यदि मेरा 6000 स्क्वायर मीटर, तब भी 2 कंपार्टमेंट चाहिए मेरे को, क्योंकि कंपार्टमेंट यदि मेरा फ्लोर एरिया 800 स्क्वायर मीटर है तो 750 प्लस हो गया, इसलिए हाँ, तो इसलिए मेरे को 2 कंपार्टमेंट चाहिए। लेकिन यदि मेरे यहाँ 6000 स्क्वायर मीटर है, 6000 हो गया, तब भी 2 ही चाहिए, क्योंकि मेरे को 3000 स्क्वायर मीटर तक एक कंपार्टमेंट चाहिए होता था। ओके सर, ओके लग रहा है सर। एक क्वेश्चन सर। हेलो, हाँ जी बोलिए प्लीज सर। जो टैंक फायर टैंक टेरेस पे रहेगी, उसकी कैपेसिटी मिनिमम क्या होनी चाहिए सर? टेरेस पे जो रहेगी? यस सर। सपोज कोई सर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है सर, चाहे बिल्डिंग फायर टैंक टेरेस पे है। बिल्कुल सर, मैं बोल रहा हूँ सर, फायर टैंक टेरेस का फायर टैंक अलग है, अंडरग्राउंड फायर टैंक अलग है, दोनों अलग अलग टैंक हैं।
उनकी जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करेगी बिल्डिंग के यूज पर, बिल्डिंग की हाइट पर, बिल्डिंग के टाइप पर। वो सर मिनिमम का वर्ड नहीं सर, सर एक टेबल दी हुई है नेशनल बिल्डिंग कोड में, वहीं से मिनिमम आएगा सर। नेशनल बिल्डिंग कोड में टेबल दी हुई है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेंसीज की, डिफरेंट हाइट ऑफ बिल्डिंग्स की, वहीं से वो मिनिमम आएगा। मिनिमम वहां से वहां पर मिनिमम 25,000 से स्टार्ट होता है और 4 लाख तक वही पूछ रहा हूँ सर कि सर वो जो दे रखा है 25,000, वो क्यों दे रखा है 25,000? सर बिल्डिंग सर ऐसा ना, बिल्डिंग ऐसी है, बिल्डिंग की हाइट बहुत कम है उसकी, और बिल्डिंग में बहुत ही लो हैजर्ड है उसके अंदर, इसलिए 25,000 रुपया आ गया। यदि बिल्डिंग की हाइट ज्यादा हो गई, बिल्डिंग का हैजर्ड बढ़ गया, तो उसका 2 लाख लीटर भी जा रहा है। वो तो बढ़ जाएगा सर, जो मिनिमम 25,000 दे रखा है सर, वो क्यों मिनिमम 25,000 सर, वो इसीलिए ना, बिल्डिंग की हाइट भी कम है। बिल्डिंग सर जो देखिए, अल्टीमेटली आप जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं वो आपके हैजर्ड पे डिपेंड, कितना हैजर्ड हो सकता है। यदि बिल्डिंग मान लो 2 फ्लोर किया, 2 फ्लोर किया, तो क्या आदमी भाग जाएंगे? थोड़ी देर के लिए पानी चाहिए, 10 मिनट वो बुझा जाएगा। यदि आपने बेसमेंट बना दिया बड़ा सा 10,000 स्क्वायर मीटर का, तो बुझाने के लिए 10 पानी बहुत चाहिए ना सर। ये वहाँ 2 लाख लीटर 4 लाख लीटर हो जाएगा। अच्छा, इसलिए 25,000 दे रखा है सर। इसलिए कैपेसिटी बढ़ती जाती है ना। Okay, that was compartmentation. The compartment itself is an item which requires at least 2 hours for to discuss. So we'll not be discussing much. तो मैंने जल्दी में थोड़ा सा निपटाता हूँ सर। हाँ, इसको मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा, इसमें सर एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो आप देख लीजिए, फायर हाइट FHC शाफ्ट। सर नेशनल बिल्डिंग कोड ने क्या किया सर, हमारी काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है सिविल इलेक्ट्रिकल की, कि फायर फाइटिंग शाफ्ट कहाँ बनेगा, है ना, तो कितने लगेंगे फ्लोर पर, कितने लगेंगे और कहाँ लगेंगे, वो प्रॉब्लम नेशनल बिल्डिंग कोड ने आर्किटेक्ट के ऊपर डाल दी। वो बोलता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को दिमाग खराब की जरूरत नहीं है, जितने भी स्टेयरकेस लगाएगा वो हर स्टेयरकेस में ऐसा एक फायर शाफ्ट लगा देगा, सिंपल। ठीक है सर। आइडिया ये है कि जैसी आग लगेगी, फायरमैन को पता होगा कि स्टेयरकेस के बिल्कुल बगल में फायर शाफ्ट है, वो ढूंढना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज आप क्या करते थे, हम इलेक्ट्रिकल वाले या आर्किटेक्ट कहीं भी फायर शाफ्ट लगा देते थे, और धुआं तो ऑलरेडी बिल्डिंग में है, बेचारा फायरमैन ढूंढता रहेगा कहाँ शाफ्ट लगा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम उन्होंने खत्म कर दिया। तो नंबर की जरूरत भी नहीं ढूंढने की आपको, और ना टाइप लोकेशन होती है, एज पर ड्राइंग लग जाएगा फायर शाफ्ट। ओके। दूसरा सर है कि बिल्डिंग के अंदर एक फायर टावर लगेगी। मैं केवल इलस्ट्रेट कर रहा हूँ जल्दी से, टाइम खत्म हो गया। मैं ओवर टाइम नॉर्मली आई डोंट मेक यू सिट ओवर टाइम, तो आई विल ओनली टेक अनदर 5 minutes एंड क्लोज द चैप्टर। So building high-rise building will have a fire tower. Fire tower क्या है कि जो suppose किसी फ्लोर पे आग लग गई, so people can use this fire tower to assemble certainly, and then they can easily धीरे-धीरे आराम से वो staircase से उतर है सर। इसके अंदर एक staircase है, एक लिफ्ट है, जो क्रॉस दिख रहा है वो लिफ्ट है, और एक आपका वेटराइजर शाफ्ट भी है। तो इस जब भी कभी बिल्डिंग में आग लगेगी, फायरमैन, इसको फायरमैन लिफ्ट लिखा हुआ है, फायरमैन इसी लिफ्ट को यूज करेगा, इस लिफ्ट से ऊपर आएगा, सामान भी आएगा, लिफ्ट चालू रहेगी, और आराम इसको आप भी यूज कर सकते हैं फायरमैन। तो जिस इवन जब फायरमैन होस्ट को लेके अंदर घुसेगा बिल्डिंग के अंदर। दैट इज सो हाई राइज बिल्डिंग्स अबव 15 मीटर विल हैव ए फायर टावर। फायर शाफ्ट डोर कोई बात ही नहीं है, ये भी सर दिस डोंट रिक्वायर मच थिंग। हाँ सर, प्लीज एनी क्वेश्चन, यू कैन जस्ट आस्क मी। नहीं सर, जितने कंपार्टमेंट होंगे उतनी फायर टावर होंगी। जितने, आई रिपीट, जितने कंपार्टमेंट होंगे उतनी फायर टावर होंगी। यदि कंपार्टमेंट 4 हो गए, 4 फायर टावर होंगी, 2 हो गए, 2 फायर टावर बनेंगे। एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग हाइट मोर देन 15 मीटर। ओके जी। Sir, in case that the number of staircase will be decided by the this staircase will also be counted for this for calculation purpose. The number of staircase will be decided by the architect. This staircase will also be counted, sir. And number of staircase will be decided by the architect. कितने चाहिए उसको फ्लोर प्लेट के हिसाब से, because that वो उसका इशू है ना ट्रेवल डिस्टेंस का। ठीक है सर। एयर कंडीशनिंग प्लांट रूम सर, सबसे नीचे की 3 लाइन पढ़ लीजिए, केवल नीचे की 3 लाइन पढ़ लीजिए। द क्लियर हेड रूम बिलो सॉफिट ऑफ बीम शुड बी मिनिमम 4.5 मीटर फॉर लार्जर कैपेसिटी चिलर। 500 TR एंड अबव का चिलर होगा तो 4.5 मीटर चाहिए मेरे को, और यदि 500 TR से कम का चिलर है तो 3.6 मीटर हाइट चाहिए एसी प्लांट रूम की। और एसी प्लांट रूम जो है प्लांट रूम का जो बेस होगा वो ग्राउंड लेवल होगा, मतलब एसी प्लांट रूम विल बी डन एट द लोएस्ट बेसमेंट, क्योंकि उसमें वाइब्रेशंस बहुत आते हैं
ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट बेसमेंट में लगा दो, नीचे सेकंड बेसमेंट में बिल्डिंग में वाइब्रेशन बहुत क्रिएट हो जाते हैं। इट्स ऑल प्रेफरेबल है ना। सेंट्रल प्लांट की लोडिंग 3000 kg पर स्क्वायर मीटर। टन की टावर का 25 टन डायनामिक वेट है एंड साइज अबाउट 8 into 8 मीटर है। फिर कूलिंग टावर के चारों साइड में आपको गैप होना चाहिए घूमने घामने के लिए, बिकॉज यू नीड टू सर्व द कूलिंग टावर एंड कूलिंग टावर हैज टू सक द एयर फ्रॉम ऑल 4 साइड्स। तो ऑल 4 साइड्स में आपको गैप चाहिए होता है। तो मिनिमम एरिया सपोज 500 की कूलिंग टावर है, नॉर्मली 7 to 7 मीटर का आपको ग्रिड चाहिएगा लगाने के लिए, और उसके अलावा गैप चाहिए रख के हवा जाने के लिए। होप दैट दिस इज वाटर कंजम्पशन। नॉर्मल कूलिंग टावर होगी 12 लीटर्स पर टन पर आवर वाटर कंज्यूम हो जाएगा। सर दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वाटर कंजम्पशन के लिए। सिविल वाला पूछता रहता है कितने टन की पानी, टन का पानी, कितना पानी खाएगा आपका एसी प्लांट। तो डाउन डिपेंड करता है कितने आवर्स की बिल्डिंग है। ऑफिस बिल्डिंग है 8 आवर्स हो गए, हॉस्पिटल बिल्डिंग है 24 आवर्स हो गए। तो नॉर्मल कूलिंग टावर आप लगाएंगे जो वाटर कंज्यूम हो जाएगा, और हाई एफिशिएंसी ECBC प्लस और ECBC सुपर कूलिंग टावर लगा देंगे तो 9 लीटर्स पर टन पर आवर वाटर कंज्यूम। These are the guidelines which I am trying to give you. It may vary. Some manufacturer may be giving you 8.9 also. Some manufacturer may be giving 9.5 liters also consumption. This is approximately I am talking. Pardon, sir? Right. So, sir, AC, that is the, I'll tell you. So what is done is this: you have to first of all find a daily water requirement. This daily water requirement you can have at the underground level. Underground tank का बना लीजिए, मेकअप वाटर टैंक, एक मेन मेकअप वाटर। ये सब क्या होता है, बड़े प्लांट्स में वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, से 1 लाख लीटर 2 लाख लीटर वाटर रिक्वायरमेंट आ जाएगी। उतना बड़ा ओवरहेड टैंक आपको मेकअप वाटर टैंक टेरेस पर नहीं मिल पाएगा, बिकॉज एसी कूलिंग टावर आजकल सब टेरेस पर लग रही हैं। तो उस केस में क्या करते हैं, नीचे आप एक कूलिंग मेकअप वाटर टैंक, मास्टर मेकअप वाटर टैंक रख लीजिए, ऊपर टेरेस पर 4 आवर्स का पानी रख लीजिए। तो प्रीवियस पेज जरा Sir, total makeup water tank capacity decided by this formula which I have written here, right, sir? 1 day की निकाल लीजिए आप। पर 12 liters per TR per hour. अच्छा प्रीवियस पेज जरा दीजिए सर। प्रीवियस पेज TR is tonnage of plant जितना चल रहा है, working capacity of the plant. ना प्रीवियस पेज 400 टन के 4 लगे हुए हैं, 400 टन के 4 लगे हुए हैं, उसमें एक स्टैंड बाई है तो 3 वर्किंग है। दैट मीन 1200 टन हो गया वर्किंग। तो 12 लीटर्स into 1200 टन मल्टीप्लाइड बाय आवर्स, आपका 6 आवर्स 8 आवर्स वर्किंग है या 24 आवर्स वर्किंग है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। या मैं सर क्या बोल रहा हूँ कि क्या होता है सब बड़े सिस्टम में मेकअप वाटर टैंक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। उतना बड़ा आपको उस टेरेस पे वो नहीं देगा मेकअप वाटर टैंक, पूरी बिल्डिंग हिल जाएगी उसकी। तो उतनी कैपेसिटी जमीन में ग्राउंड फ्लोर पर ग्राउंड में रख लीजिए, ग्राउंड लेवल पर रख लीजिए पानी, और वहां से पंप करके ऊपर जो टैंक बनाया छोटा सा बना दीजिए, 1 घंटे 4 घंटे के आसपास का बना दीजिए। सर प्रीवियस पेज जरा दीजिए, जस्ट प्रीवियस पेज। पार्डन सर? हाँ सर, ठीक है सर, ये जरा चाहिए। Compartments we have already covered, sir. Compartments area will be based upon the uses, right? सर इसकी बैक स्लाइड क्या थी सर? इससे बैक This is the size of compartment. ये तो important था ना सर? नहीं, इससे बैक एक साइड। ओके, आप इसके बैक ले लीजिए।
वो लाइट का था लक्स का, ये 1 सेकंड। वो सर क्या है मिनिमम जो एग्जिट पाथ बनेगा ना फायर कंट्रोल फायर सिस्टम में क्या है कि इन द बिल्डिंग यू हैव टू डू एग्जिट पाथ. So exit path basically consists of exit corridor and the staircase. In those exit corridor and the exit staircase, minimum 10 lakhs आपको UPS पे रखना है. ओके सर. सर एक डाउट था सर. हाँ प्लीज. सर व्हाट इज स्ट्रक्चरल अर्थिंग? What is structural earthing? Yes sir. Let me just complete this thing sir first. थोड़ा आएगा खत्म कर देते हैं ये. मैं आपसे बाद में कहीं बात कर लूँगा. सर स्मोक कंट्रोल अबव ग्राउंड. सर नीचे तो क्या हुआ है सर, स्मोक कंट्रोल के लिए हमने बेसमेंट में तो हमने कर्टेन लगा दिया, राइट सर, और हमने वेंटिलेशन कर दिया उस एरिया का, स्मोक कंट्रोल हो गया. अबव ग्राउंड क्या करेंगे? अबव ग्राउंड एक तो एग्जिट पाथ बनेगा, बिल्डिंग डिफाइन होगा, एग्जिट पाथ क्या है, स्टेयरकेस एग्जिट पाथ में आएगा, एग्जिट कॉरिडोर्स होंगे, एंड इट विल बी ऑटोमेटिक इन एक्शन. दैट मींस वी व्हाट वी वांट वी नॉर्मली डू प्रेस. ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं इसको टच नहीं कर रहा अभी, कंफ्यूज कर देंगे आप लोग, मैं भी कंफ्यूज कर दूंगा आपको, सो आई विल नॉट टच इट. फायर कंट्रोल रूम आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. इसमें सर एक फिक्स्ड फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें सर एक मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ सभी लोगों को. सर जो फिक्स्ड एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप जो 3, 4, 5, 5 kg वगैरह के, तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, वी आर माउंटिंग एट ए वेरी बैड प्लेस, गंदे भी लगने. तो इसका एक तरीका ये होता है कि जो शाफ्ट है, आप शाफ्ट के अंदर, फायर शाफ्ट आपके पास अवेलेबल है, आप फायर शाफ्ट के अंदर भी रख सकते हैं इनको, जिससे कि बीच में हिंड्रेंस ही नहीं बनेंगे, सेफ भी रहेंगे और सबको पता रहेगा कि कहाँ रखे हुए हैं. फायर शाफ्ट की लोकेशन प्री डिफाइंड है और वहाँ पर इंडिकेशन भी लगा हुआ है, तो आप वहाँ पर उसको एक्सटेंशन रख सकते हैं. एक मिनट चेक, एक सपोज एक ड्राइंग की हमें जब सपोज आजकल कंसल्टेंट्स अपॉइंटेड हैं ज़्यादातर कामों के लिए, तो वी चेक अप वेदर एवरीथिंग हैज बीन कंसिडर्ड और नॉट. सो that whether you have electrical substation, waterizer pump house, water supply pump house, lift लगी है नहीं लगी हैं, then fire control room आया नहीं आया, टेलीफोन शाफ्ट आ गए हैं, इलेक्ट्रिकल शाफ्ट चाहिए, वेटर शाफ्ट चाहिए, टेलीफोन शाफ्ट चाहिए, फायर अलार्म चाहिए, सॉलिड वेस्ट शाफ्ट है या नहीं, सिविल प्लम्बिंग शाफ्ट होना चाहिए, वेस्ट वाटर शाफ्ट होना चाहिए, डोर्स एंड डोर मटेरियल फॉर वेरियस शाफ्ट क्या है, सर्विस एंट्री पाइप्स दिए हैं नहीं दिए हैं, सेंटर एयर कंडीशनिंग के लिए एसी प्लांट रूम साइज एंड लोकेशन, कूलिंग टावर लोकेशन, एएचयू रूम साइज एंड लोकेशन, एएचयू रूम ड्रेनेज फ्रेश एयर ओपनिंग है या नहीं, चिलर पाइप शाफ्ट है नहीं, फॉल सीलिंग कोऑर्डिनेशन हुआ नहीं हुआ, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग क्रॉस सेक्शन कि मेरी फॉल सीलिंग में ऊपर हाइट सफिशिएंट है या नहीं, सीलिंग हाइट टू एकोमोडेट डक्टिंग है या नहीं, वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है मेरी, नीचे वाटर है या नहीं, रूट्स ऑफ पाइपिंग केबलिंग दिखाया है या नहीं, एकॉस्टिक इंसुलेशन जहाँ चाहिए वहाँ पर है या नहीं, एयर टाइटनेस ऑफ विंडो, वेंटिलेशन स्मोक कंट्रोल में फैन रूम कहाँ पर है, वेंटिलेशन शाफ्ट कहाँ पर है, प्रेशर ओपनिंग है. तो दिस इज देयर सम स्मॉल चेकलिस्ट विच कैन बी यूज फॉर चेकिंग द ड्राइंग्स. स्प्लिट एसी है तो लोकेशन दिया है नहीं, आउटडोर यूनिट कहाँ लगेगी, इंडोर यूनिट कहाँ लगेगी, विंडो एसी है लगाना है तो ग्लास का साइजेस है नहीं. मेल कर दीजिए. So you can make your own checklist and floor to floor that I will discuss. Don't add up much and don't waste your more. So proper space planning. Just a minute, sir. Proper space planning. So I will conclude that proper space planning, structure and architectural provisions. इसमें एक लाइन गायब हो गया सर. Make equipment easier. निकाल के टिक करके भेजना है ना. Okay. So proper planning will make the things easier. Installation of equipment becomes easier. Reduce rework, wastage सब कम हो जाएगा. Civil construction better हो जाएगा. It will develop cordial relations between both all sides and reduces overall cost of the building and reduces maintenance cost throughout the building and gives a better aesthetics. So planning is very important. That is what I want to say. Proper space planning is important. With that, I thank you all for patient hearing. I hope I didn't bore you. The topic is very, very lengthy. It requires days together. So only thing I tried to give you insight. Now you can study in detail as and when you feel like, whosoever is interested. Yeah. So I will close my session with that note. Thanks a lot. Thank you very much. Mr. D. Thank you.
Thank you, sir. Thank you, Thank you, very sir. much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Mishra ji, help them out. Okay. हाँ थैंक यू सर वेरी मच। Okay, sir. Thank you. Thanks a lot. Thank you. इस ट्रेनिंग में कुछ लोग जो एब्सेंट हैं उनके हम नाम बोल रहे हैं, अगर वो प्रेजेंट हैं तो बता दें हमको, जो है ना हम नाम बोल रहे हैं उनके, Thank you. जो हमारे रिकॉर्ड के अनुसार वो एब्सेंट आ रहे हैं, अगर यहाँ प्रेजेंट हैं तो हम बोल सकते हैं। एक पटेल,